Hey there, I'm Soumya, your accounts partner, and today we are going to start with the chapter Bills of Exchange. I'll cover this topic in two videos. In today's video, we are going to talk about what is Bill of Exchange, different types of Bills of Exchange, journal entries of issue and various treatments. And in the next video, we'll cover journal entries of honor and dishonor of Bills of Exchange. So let's start with today's class. So what is a Bill of Exchange? Basically, a Bill of Exchange is an agreement between a buyer and a seller who have entered into a contract of sale. That is, जो सेलर है उसने गुड्स तो भेज दिए बायर को, बट बायर हैजंट मेड द पेमेंट येट. क्रेडिट सेल हो गई है पर लेकिन अभी पेमेंट नहीं मिला है, तो उस लिए जो सेलर होता है वो बायर के ऊपर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है, जो कि जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. वो एज अ प्रूफ कि अभी बायर को पेमेंट करना है सर्टेन अमाउंट का और सर्टेन डेज बाद उस सेलर. So what is written is bills of exchange is an unconditional order in writing. An unconditional order मतलब उसमें और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. जो भी लिखा है केवल ये लिखा होना चाहिए कि इतना पैसा देना है, इस दिन देना है, और इट मस्ट बी राइटिंग. इट जस्ट कांट बी ओरल. हम लोग ने बोला उससे, वो उसका कोई प्रूफ नहीं है. इट कांट बी अ प्रूफ. अगर हम लोग ने सेलर ने बायर से बोला कि मुझे तुम पैसे दे देना, उसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो it must be in writing. Directing to pay a certain amount. It is drawn by the seller who is the drawer. जिसने क्रेडिट सेल्स की है वो ड्रॉ करता है. Who directing to pay a certain amount to the buyer or the drawee. Drawee is the person who accepts the bill of exchange, or we can say drawee is the buyer जिसने क्रेडिट परचेजेस किए. So bills of exchange is a negotiable instrument which is an unconditional order that must be in writing, drawn by the drawer, directing to pay a certain amount to the drawee. So there are two parties, drawer and drawee. Drawee is the person who makes the order and drawee is the party which accepts the order. Drawer को हम लोग कह सकते हैं drawer is the seller or the creditor or the payee. Payee क्यों? Payee क्योंकि उसको पेमेंट मिलने वाला है. एंड ड्रॉयर इज द पार्टी विच एक्सेप्ट्स द ऑर्डर. ड्रॉयर को हम लोग डेटर भी बुला सकते हैं, पेयर भी कह सकते हैं. डेटर क्योंकि डेटर इज द पर्सन मतलब बायर जिसने क्रेडिट परचेजेस की हैं, जिसे अभी पैसे देने हैं. ही इज अ डेटर फॉर द ड्रॉवर. सो बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज यही है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. So for the drawer, the bill of exchange is an asset, so it will appear in its books as trade receivable or bills receivable, and for the drawee it is a liability. It will appear in his books as trade payable or bills payable. Before talking about the types of bill of exchange, we need to know about the concept of date of maturity and days of grace. So I'll explain you with an example. Suppose A sells goods worth rupees 5,000 to B. Credit sales की है, and A decides to draw a bill of exchange on 1st Jan for a period of 3 months on B. Here A is the drawer and who is B? B is the drawer. तो 1st Jan से 3 महीने हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 1st of April. This is the due date. इसी के साथ हम लोग ड्रॉई को 3 दिन और देते हैं. अगर वो 1st of April को पेमेंट नहीं कर सकता है तो वो इन 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दे, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हम लोग का डिसॉल्व हो जाएगा. 1st April प्लस 3 डेज दैट विल कम टू 4th of April. ये हो गए हमारे 3 दिन जो हुए वो डेज ऑफ ग्रेस हो गए. इसको ऐड करके या तो 4th of April या तो वो 1st April को पेमेंट कर देता है, अगर नहीं कर पाते तो 4 अप्रैल तक उसे पूरा पेमेंट कर देना है. अब ड्यू डेट अगर मान लो पब्लिक हॉलीडे हुई, पब्लिक हॉलीडे जैसे कि गांधी जयंती हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट जो है वो एक दिन पहले हो जाएगी. जैसे ड्यू डेट 15 अगस्त को पड़ रही है तो हम लोग 14 अगस्त को ड्यू डेट लेके चलेंगे. बट इन केस इमरजेंसी आ गई, किसी कारण जो है छुट्टी हो जाती है, पब्लिक हॉलीडे हो जाती है, पूरी तरह से पूरा जो देश है वो बंद हो जाता है या आपका एरिया बंद हो जाता है, तो उस केस में पेमेंट जो होगी वो अगले दिन होगी. ड्यू डेट विल फॉलो ऑन द डे फॉलोइंग द डे, अगले दिन होगा.
Now we'll talk about the types of bill of exchange. Bills of exchange are mainly of three types: bill at side, bill after date, and bill after side. Bill at side. Bill at side is a bill of exchange where the drawer does not give any time period to the drawer. As soon as he receives the bill, he has to make the payment. जैसे इसमें है A B को बिल ऑफ एक्सचेंज अगर 1 जनवरी को भेज रहा है और 3 महीने का पीरियड नहीं है, तो जैसे ही वो B मान लो 15 जनवरी को उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव करा, उसी दिन उसे पेमेंट करनी है. उसमें 3 मंथ्स वाला कुछ नहीं है. 1 जनवरी को उसने भेजा, 15 जनवरी को रिसीव करा, उसी दिन उसे पेमेंट करनी पड़ेगी. वो हो गया बिल एट साइड. अब बिल आफ्टर डेट. बिल आफ्टर डेट क्या होता है? बिल आफ्टर डेट यही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले समझाया था. इसमें क्या है, ए ने ड्रॉ करा बिल 1 जनवरी को, 3 महीने का पीरियड है, टाइम पीरियड है, और 1 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4 अप्रैल. 4 अप्रैल तक पेमेंट कर देनी चाहिए बी को, तो होता है वो बिल आफ्टर डेट. ये मतलब नहीं है हम लोग को कि 15 जन को बी ने रिसीव करा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है. जब ए ने ड्रॉ करा बिल, उसी दिन से हम लोग कैलकुलेट करना चालू कर देंगे. इन केस ऑफ बिल आफ्टर साइड, बिल आफ्टर साइड में ये होता है कि जब ए ने ड्रॉ तो कर दिया 1 जनवरी को बिल ऑफ एक्सचेंज, बट बी ने रिसीव 15 जनवरी को करा, तो हम लोग जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट कब से करना चालू करेंगे? 15 जनवरी से. अगर उसमें लिखा है बिल आफ्टर साइड है बिल ऑफ एक्सचेंज, 15 जनवरी से कैलकुलेट करेंगे. हमारा आ जाएगा 15 जनवरी प्लस 3 मंथ्स, 3 महीने का है, तो 3 महीने का हो गया हमारा 15th अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, ये हो गया 18 अप्रैल. तो 15 से 18 के बीच में पेमेंट कर देनी चाहिए ड्रॉई को. तो नेक्स्ट we'll take up the journal entries. So let's begin with the journal entries now. We have taken the case A sells goods to B worth ₹5,000 on credit. हम लोग A की बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे और B की बुक्स में भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे. A हमारा सेलर है, B हमारा बायर है, तो A की बुक्स में देखते हैं. B's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000. B को हम लोग ने डेबिट इसलिए करा है क्योंकि वो हमारा असेट है. असेट इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे. टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमारी इनकम है. इनकम जब इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं. हम लोग ने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा हुआ है कि असेट एक्सपेंस या ड्रॉइंग जब इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे. और जब हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल की, जब वो इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब वो डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं. तो हम लोग बीस की जर्नल में देखते हैं क्या एंट्री हो रही है. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. परचेजेस अकाउंट को डेबिट क्यों करा गया है? क्योंकि परचेज जो है वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है. अब एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं टू एज अकाउंट. ए हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी है. लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट करा हुआ. अब इश्यू ऑफ बिल. इश्यू ऑफ बिल ए डिसाइड करता है कि वो एक बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर 1 जनवरी को 3 मंथ्स के लिए. तो उसकी एंट्री होगी जनवरी 1, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज अकाउंट 5,000. जो हमारा असेट है बी, वो ट्रांसफर हो रहा है बिल्स रिसीवेबल में, तो बी का अकाउंट जो है वो कम हो रहा है और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बढ़ रहा है. दोनों ही हमारे लिए असेट है. असेट जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, जब वो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो हमारा असेट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसे डेबिट करा है 5,000 से, और बी जो हमारा असेट था वो अब डिक्रीज हो रहा है तो उसे 5,000 से क्रेडिट कर दिया. अब बी की जर्नल में देखिए क्या एंट्री हो रही है. बी ने एक्सेप्ट करा बिल तो उसकी एंट्री हुई एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल. उसकी जो लायबिलिटी थी ए की वो ट्रांसफर हो रही है बिल्स पेएबल अकाउंट में. लायबिलिटी अभी भी है, उसे पेमेंट अभी भी करना है, बस हम लोग जो है अकाउंट ट्रांसफर कर दे रहे हैं. तो ए का जो अकाउंट है वो कम हो रहा है, मतलब उसकी जो ए वाली लायबिलिटी है वो कम हो रही है, बिल्स पेएबल अकाउंट वाली लायबिलिटी बढ़ रही है. तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी कम हो रही होती है तो हम लोग उसे डेबिट करते हैं. तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 5,000. अब जो ए है वो बिल्स को 3 महीने तक या तो अपने पास रखे रहेगा या तो वो उसे कहीं एंडोर्स भी कर सकता है. तो हम लोग अब एंट्रीज देखेंगे एंडोर्समेंट की. सो फॉर ए द बिल ऑफ एक्सचेंज or bills receivable is an asset. He can use it in various ways. There are mainly 4 ways. Either he keeps it with himself, तो हम लोग कोई एंट्री नहीं करेंगे.
he gets it discounted with bank. In case before the maturity date, A requires money, he can go to the bank, present his bill of exchange, and the bank will deduct some discounting charges and give him the money. Suppose he goes to the bank and bank says, I'll charge 10% discounting charges. He'll keep the bills of receivable, the bank will keep the bills of receivable, give him 4950 after deducting 10% discounting charges, and on the date of maturity, the bank will collect the payment from B. In case the B is not able to give the payment, again bank can go to A and receive payment of 5000 full. थर्ड इज कि ए जो है वो बी किसी और को बिल जो है वो एंडोर्स कर दे, जो सी है उसका क्रेडिटर है, उसे पैसे देने हैं, उसके लिए एक और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने की बजाय वो जो बिल्स ऑफ रिसीवेबल उसे मिला है बी से वो उसे सी को दे देता है. सी इज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. और या तो वो बिल जो है वो कलेक्शन के लिए सेंड कर सकता है. अब ए जो है वो चाहता नहीं है कि जाके वो बी से कहे, बी से बार पैसे मांगे, तो वो बी कैन ए कैन सेंड द बिल फॉर कलेक्शन. उसकी एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई इशू की. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ऑनर और डिसऑनर को. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.